الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم ابتدائی تعریفات پڑھ رہے ہیں، اور آج ہماری انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ ابتدائی تعریفات ہماری مکمل ہو جائیں گی، اور ہم آج سے ہی اوقات بھی نکالنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور آج ایک مشق بھی انشاءاللہ عزوجل کو دی جائے گی حل کرنے کے لیے۔ اب ہم نے جو تعریفات کچھ پڑھی تھیں، کچھ آگے بھی پڑھنی ہیں، ہر پیچھے والی تعریفات سے تعلق ضرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم آج کی تعریف بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی پیچھے والی تعریف سے تعلق ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میل شمس۔ اب پیارے طلبہ اکرام، میل شمس کو سب سے آسان الفاظ میں اگر میں اپنے انداز میں سمجھاؤں تو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں عرض بلد کی تعریف۔ اب عرض بلد کیا ہے؟ خط استوا سے کوئی مقام جتنا دور ہے تو وہ اس کا عرض بلد کہلاتا ہے۔ کوئی خط استوا پر ہی ہے تو اس کا پھر عرض بلد 0 ہوگا، اور جیسے جیسے وہ خط استوا سے دور جاتا جائے گا تو اس کا عرض بلد بڑھتا جائے گا، 10 20 30 40 50 اس طرح بڑھتے بڑھتے زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام آتی ہے میل شمس کی، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی شخص کسی جگہ پر ہے تو اسی جگہ پر اگر سورج آ جائے، یعنی سورج زمین کے سکتا ہوا تو نہیں ہوگا تو آسمان میں، لیکن اسی جگہ کے اوپر آ جائے تو یہ سورج کے لیے میل کہلائے گا، یعنی میل شمس۔ اب میل شمس عرض بلد تو زیادہ زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے، تو میل شمس زیادہ زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ تو میل شمس 90 درجے تک نہیں پہنچتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو وجہ پڑھ کے جب خط سوا کو بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان فلکیات دانوں نے کس طرح سے اس کو ترتیب دیا، تو وہاں پر پڑھا تھا ہم نے کہ انہوں نے سورج کی حرکت کو نوٹ کیا، اور سورج کی حرکت بالکل 90 درجے شمال اور جنوب تک نہیں گئی بلکہ کم گئی ہے، لہٰذا سورج کا میل شمس بھی 90 درجے تک نہیں ہوگا۔ اب کم ہوگا، کتنا ہوگا وہ آج کی ہم ابھی اسی تعریف کے اندر پڑھیں گے۔ یہ سورج کا میل کہلاتا ہے۔ اب سورج خط استوا سے جانب بھی جا سکتا ہے، جانب جنوب بھی جا سکتا ہے، لیکن جائے گا دونوں طرف برابر۔ وجہ کیا ہے کہ جتنا یہ سورج جاتا تھا شمال اور جنوب اس کے بیچ میں تو ویسے ہی انہوں نے خط کھینچا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں طرف برابر ہی جائے گا، جتنا شمال کی طرف سورج ہٹے گا اتنا ہی جانب جنوب بھی ہٹے گا۔ تو آئیے ہم میل شمس یعنی سن ڈکلینیشن، خط سوا سے مرکز شمس کی قریب ترین دوری میل شمس کہلاتی ہے۔ اگر سورج شمال کی طرف ہو تو میل شمالی ہوگا، سورج جنوب کی طرف ہو تو میل جنوبی ہوگا۔ میل اعظم یعنی بڑے سے بڑا میل، سورج زیادہ سے زیادہ جو خط استوا سے دور جاتا ہے تو وہ موجودہ دور میں 23 درجے 26 دقیقے ہے، جو شمال اور جنوب دونوں جانب یکساں رہتا ہے۔ عموماً میل شمس شمالی کو پلس اور میل شمس جنوبی کو مائنس سے ظاہر کرتے ہیں۔ سال بھر کے میل شمس کا جدول آخری صفحات پر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دیکھیے، یہ بیچ میں ہے خط استوا تصویر کے، میل اعظم شمالی 23 درجے 26 دقیقے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے این کا مطلب ہے نارتھ، اور نیچے ہے 23 درجے 26 دقیقے ایس، یعنی میل اعظم جنوبی 23 درجے 26 دقیقے، اور ایس کا مطلب ہے ساؤتھ کہتے ہیں جنوب کو۔ تو یہ سورج کا میل ہے، سورج یہاں سے لے کر یہاں تک ہی جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا، اس سے زیادہ جنوب کی طرف بھی نیچے بھی نہیں جاتا، تو لہٰذا یہ 23 درجے اور 26 دقیقے جی دونوں طرف برابر ہی جاتا ہے۔ تو اب طلبہ کرام ہم نے پڑھا کہ میل شمس شمالی کو پلس اور میل شمس جنوبی کو مائنس سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر اگر میل شمس لکھا ہوگا اس کے ساتھ مائنس کی علامت لگانا لازمی ہوگا اگر میل شمس جنوبی ہوگا۔ تو شمالی ہے تو اس کے ساتھ پلس کی علامت نہیں بھی لگائیں گے تو چل جائے گا، کیونکہ پلس کی علامت نہ لگی ہو تو بھی اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ پلس ہے، یعنی لگی ہو یا نہ لگی ہو دونوں برابر ہیں، لیکن مائنس کی علامت لازماً لگانا ہوگی اگر میل شمس جنوبی ہوگا۔ کتاب کے آخر میں آپ کو میل شمس ملے گا کسی تاریخ کا کہ یہ
इतने दर्जे इतने दकीके और साथ में एस लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये जुनूबी है, एस का मतलब साउथ, और फिर ये कि इसके साथ माइनस भी लगाना है फार्मूले में। अब प्यारे तलबा करम, ये होगी सूरज की एक हरकत, यानी जो वो हरकत जो इसकी शमालन जुनूबन हरकत होती है सूरज की। लेकिन एक दूसरी हरकत भी तो है ना जो इसकी तूले बलद के एतबार से होती है, यानी जो रोजाना 24 घंटे में चक्कर अपना पूरा करता है। तो अब उस चक्कर का आगे बयान है, इक्वेशन ऑफ टाइम तादील अय्याम। सूरज रोजाना जाहिरी तौर पर जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, लेकिन इसकी चाल यकसा नहीं रहती, कभी सुस्त तो कभी चुस्त। असल में होता क्या है, सूरज जमीन के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है तो ये हम समझते हैं कि ये रोजाना 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर नहीं पूरा कर पाता, बल्कि कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे से पहले इसका चक्कर है, और कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे पूरे हो जाते हैं लेकिन इसका चक्कर अभी भी बाकी होता है, यानी जहां से ये चला था वहां तक कभी पहुंचा ही नहीं होता। तो ये इसकी चाल के अंदर रहती है, यानी आज 12 बजे जब ये चला, कल 12 बजे इसको जहां पर होना चाहिए था उससे कब या तो पीछे है या फिर आगे है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब इन्होंने क्या क्या फल्कियात दानों ने, लिहाजा हकीकी सूरज की चाल को समझने के लिए एक और सूरज फर्ज किया गया है जिसकी चाल हमेशा यकसा, यानी फर्जी सूरज ठीक दिन 12 बजे अपनी इंतहाई बुलंदी यानी पीक पॉइंट पर पहुंचता है। हकीकी सूरज और फर्जी सूरज के दरमियान अब जो इस फर्क को तादील अय्याम से बराबर करते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में 12 बजे हम देखते हैं कि जो जाहिरी सूरज है, हकीकी सूरज है, ये 12 से कितना पीछे है, पता चला जी 3 मिनट अभी पीछे है। तो इसके अंदर ये होगा कि 3 मिनट हमें प्लस करने पड़ेंगे, मतलब क्या होगा कि ये 12:03 पे ये पहुंचेगा, जहां ये था वहां पर अब पहुंचेगा ये 12:03 पे। और अगर इसकी चाल के अंदर तेजी आ गई, स्पीड आ गई, फर्ज करें 3 मिनट की स्पीड आ गई, तो अब इसमें से 12 में से हम 3 मिनट माइनस करेंगे। वजह क्या है कि ये 11:57 पे वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये इसकी तादील अय्याम कहलाती है। खैर अभी आपको यहाँ पर तारीफ पढ़ा रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल अगले लेवल में जाकर आपसे करवाया जाएगा तादील अय्याम का। तादील अय्याम कभी मनफी और कभी मस्बत होती है, ये आपको भी मैंने बता दिया। दिन 12 बजे में तादील अय्याम मिलाने से बलदी जवाल हासिल होता है। अब आपको प्यारे तलबा के नाम बलदी जवाल निकाल कर आपको इस किताब के अंदर दे दिया जाएगा, यानी आपको तादील अय्याम निकालने की हाजत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको बलदी जवाल दिया जाएगा। और बलदी जवाल की जदवल आखिरी सफात पर मुलाजा फरमाएं। ये बलदी जवाल का जदवल आपको आखिरी सफात पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जब हम प्रैक्टिकली सवाल हल करेंगे तो आपको वहां से बाकायदा निकालना सिखाया जाएगा कि बलदी जवाल को देखा कैसे जाता है। यानी लोकल टाइम, तूले बलद को 15 से तकसीम करने पर जो घड़ी हासिल हो इसे बलदी घड़ी यानी लोकल टाइम कहते हैं। यानी मसलन कराची का तूले बलद है 67 दर्जे 4 दकीके, यानी 67 दर्जे 4 दकीके, ये दर्जे की अलामत है, आगे दकीके की अलामत है, ये एक कॉमा। इसे 15 से तकसीम करने पर कराची की बलदी घड़ी यानी लोकल टाइम 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड हासिल हुई। अच्छा, अब ये कैसे हासिल हुई, ये इंशाल्लाह हमें अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आगे जाकर इसका पूरा फार्मूला हल किया हुआ आपको मिलेगा। 67 दर्जे 4 दकीके तकसीम 15 तो बराबर जवाब आएगा 4 घंटे 28 और 16 सेकंड। अच्छा, तूले बलद को 15 से क्यों तकसीम किया प्यारे तलबा के नाम, इसलिए कि सूरज 24 घंटे में अपना एक चक्कर करता है, और एक चक्कर में दर्जे कितने होते हैं, 360 दर्जे होते हैं जाहिर है। अब सूरज 360 दर्जे 24 घंटे करता है तो एक घंटे में कितने दर्जे हुए, हमने ये देखना है। तो एक घंटे के दर्जे देखने के लिए हमने क्या किया, 360 तकसीम 24 करेंगे, तो तकसीम जब 24 किया तो जवाब आएगा आपके पास 15। तो मतलब ये हुआ कि सूरज एक घंटे में 15 दर्जे, 2 घंटे में 30 दर्जे, 3 घंटे में, इस तरह करते करते जब 24 घंटे बनेंगे तो वो खुद ही 360 दर्जे बन जाएंगे। अब चीज ये है कि हमें पता चल गया कि सूरज 15 दर्जे तय करता है, लिहाजा हम अगर दर्जों को 15 पर तकसीम कर देंगे तो जवाब घंटों में हासिल हो जाएगा। यानी हमारे पास फर्ज करें दर्जे पर तकसीम किया तो जवाब 1 आ गया, मतलब 1 घंटा। इसी तरह से 30 दर्जे हैं तो 15 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 2 आएगा, 2 घंटे। लेकिन जवाब हमारे पास दर्जे पूरे पूरे ना हो 15 वाले, जैसे फर्ज करें 25 दर्जे हों तो फिर क्या करेंगे, तो उसका हल इंशाअल्लाह ज़ोजल आगे आपको सिखाया जाएगा कि इसको फिर किस तरह से तकसीम करेंगे।
आगे आती है मयारी घड़ी। अच्छा, ये बलदी घड़ी, प्यारे तलबा इकराम, बलदी घड़ी हर इलाके की मुख्तलिफ होती है, हर शहर की मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर शहर का तूले बलद मुख्तलिफ है। अब कराची का तूले बलद 67 दर्जे 4 दकीके, तो इसकी घड़ी ये बनी 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड। अच्छा, ये 4 बज के 28 मिनट 16 सेकंड नहीं है, यह है 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड। अब लाहौर की जो है, लाहौर का तूले बलद वो है 74 दर्जे 19 दकीके, तो इसकी बलदी घड़ी उस हिसाब से बनेगी। इसी तरह से खानपुर का तूले बलद है 70 दर्जे और 40 दकीके, तो इसकी बलदी घड़ी उस हिसाब से बनेगी। तो हम फिर आगे तकसीमकारी कर लेंगे जब हमें तरीकाकार पता चल गया। आज इंशाअल्लाह आपको इसका तरीकाकार बताया जाएगा कि ये तकसीम कैसे किया जाता है, या तो आज की क्लास में आ जाएगा या फिर आपके कल की क्लास में आ जाएगा। आगे आती है मयारी घड़ी। अब बलदी घड़ी तो हर शहर की मुख्तलिफ हो गई, लेकिन प्यारे तलबा इकराम, पूरे मुल्की इंतजामात को चलाने के लिए भी तो कोई घड़ी चाहिए। लिहाजा मुल्की इंतजामात को संभालने के लिए हुकूमत पूरे मुल्क या सूबे के लिए जिस घड़ी को मायार बना ले, यानी जिस जगह के कर उसको मायार बना ले कि जी ये हमारी मायारी घड़ी पूरे मुल्क में ये राइज होगी, उसे मायारी घड़ी यानी स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। मायारी घड़ी बनाने के लिए हुकूमतें जीएमटी को मायार बनाती हैं, यानी क्या करती हैं कि ग्रीनविच बर्तानिया के अंदर जो घड़ी लगी है उससे अपनी घड़ी या तो आगे करती हैं या पीछे करते हैं। आगे वो हुकूमतें करती हैं कि जिनके मुल्क मशरक में वाक़ हैं, यानी बर्तानिया से मशरक में वाक़ हैं। जो मगरब में वाक़ हैं तो वो अपनी घड़ियां पीछे करते हैं। अब पाकिस्तान ने अपनी घड़ी आगे की हुई है, पीछे की हुई है, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ आगे जाकर हम पढ़ेंगे। आगे आता है जीएमटी। जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, का मुखफ़फ़ है। ग्रीनविच बर्तानिया के शहर लंदन का एक मकाम है जहां दुनिया की सही घड़ी नस्ब है। इसी घड़ी को आलमी घड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक की हुकूमतें इसी घड़ी से पहले या बाद कुछ घंटों का फर्क लेकर अपने ममालिक के लिए मायारी औकात मुकर्रर करती हैं। अब यहाँ पर आपके सवाल का अगला जवाब ये आ रहा है कि पाकिस्तान की घड़ी कौन सी है। फिर जैसा कि पाकिस्तान का मायारी वक्त ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है, हम क्या करते हैं जीएमटी +5। आपने भी कभी मोबाइल सेट किया हो तो हो सकता है कि उसकी टाइमिंग सेट करते वक्त आपके सामने आ गया हो जीएमटी +5 और साथ लिखा होता है इस्लामाबाद। अब ऐसा नहीं कि इस्लामाबाद की घड़ी उठाकर बलदी पूरे मुल्क के ऊपर नाफिज की गई है, वो और मकाम है। वो कौन सा मकाम है वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अब ये सिर्फ बताने के लिए कि इस्लामाबाद चूंकि दारुल खिलाफा है इसलिए उसका नाम लिखा होता है, और +5 पाकिस्तान की घड़ी 5 घंटे ग्रीनविच से आगे। मायारी घड़ी के मुतालिक मजीद तफसील आगे आएगी। आगे आती है डीएसटी। अब ये डीएसटी क्या चीज है प्यारे तलबा के नाम? ये डीएसटी ऐसी चीज है कि पाकिस्तानी अवाम इसके सख्त खिलाफ रही है जब डीएसटी लगती थी, फिर डीएसटी लगाना बंद कर दी गई सन 2008 और 2009 में, गालिबन बल्कि 2009 नहीं 2007-2008 में शायद ना आखिरी दफा डीएसटी लगाई गई थी। उसके बाद फिर डीएसटी नहीं लगाई गई। अब ये डीएसटी है क्या चीज? आप लोगों ने सुना होगा कि आज रात 12 बजे अपनी घड़ियां 1 घंटा आगे कर लीजिए, फिर 6 माह बाद दोबारा ऐलान होता है कि जी आज रात अपनी घड़ियां 12 बजे 1 घंटा पीछे कर लीजिए। अब ये जो घड़ियां आगे पीछे करवाते थे ना, इस चीज का नाम डीएसटी था। अब ये डीएसटी लगाया क्यों जाती है? मसला ये है, क्या इसके फवायद हैं? तो इसके फवायद बहुत हैं। अब ये डीएसटी चूंकि मौसम गर्मा के अंदर जब गर्मियों का सीजन होता है तो उस वक्त ये होता है कि दिन बहुत पहले शुरू हो जाता है, यानी जैसे फजर की नमाज आजकल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जहां पर मैं हूं अभी, तो यहाँ पर हमारी 6:15 बजे नमाज हो रही है, 6:15 पे जमात हो रही है फजर की। तो अब सर्दियों में और गर्मियों के अंदर यही फजर जाकर 4 बजे ठहरती है, बल्कि 4 से भी पीछे चली जाती है। अब जब इतना ज्यादा फर्क ये दे जाता है और तुलू भी इसी तरह पहले हो जाता है क्योंकि दिन बड़ा हो जाता है, तो हुकूमतें क्या करती हैं कि अपने इदारे जो सरकारी वगैरह हैं या निजी इदारे भी जिन ममालिक के अंदर इस तरह से लगते हैं, या गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो प्राइवेट इदारे भी लगते हैं, तो वो कहते हैं कि इन इदारों को जल्दी शुरू किया जाए। अब जो इदारा 8 बजे लगता है तो 8 के बजाय उसको 7 बजे शुरू कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ صبح صبح گرمی کم ہوتی ہے. اب کسی نے اگر پنکھے چلانے ہیں اے سی چلانا ہے تو وہ تھوڑا سا کر کے چلائے گا. اب اگر زیادہ جلدی صبح ادارہ کھل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پنکھے وغیرہ تو وہ اپنے اسی ٹائم سے چلائیں گے جب ان کو گرمی لگے گی. پہلے اگر 9 بجے چلاتے تھے انہوں نے اس پرانے ٹائم کے مطابق 9 بجے چلانا ہے, لیکن نئے ٹائم کے مطابق نئی گھڑی کے مطابق اب وہ 10 بجے چلائیں گے. اب چھٹی اپنے ٹائم پر ہو جائے گی. تو اس طرح سے پورا 1 گھنٹہ ایسا گزرے گا کہ جب انہوں نے یا تو پنکھے نہیں چلائے یا پھر اے سی نہیں چلایا, یعنی بند رہا اے سی. اب اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ روزانہ کی کہ اس حساب سے بجلی کی بچت ہوگی. اسی طرح سے بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر جو مارکیٹیں ہیں وہ دن 2 بجے اوپن ہوتی ہیں, رات 10 بجے بند ہوتی ہیں. اب جب انہوں نے ڈی ایس ٹی لگا دی تو اب ان کی مارکیٹ 2 کی بجائے پرانی گھڑی کے مطابق وہ 1 بجے اوپن ہوگی. اب نئی گھڑی کے مطابق وہی 2 بجے ہی ہے, کیونکہ پورے ملک کا قانون یہی ہوگا کہ اب جو گھڑی چل رہی ہے اس کے مطابق آپ لوگ 2 بجے کھولیں. اب 2 بجے کی بجائے انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے مارکیٹ کھول لی اور رات 10 کی بجائے 9 بجے بند کر دی پرانی گھڑی کے مطابق. اب کیا ہوا, ظاہر ہے کہ جو لائٹیں آن ہوتی ہیں مارکیٹوں کے اندر تو یہ رات کو آن کرتے ہیں, دن کو آن کوئی نہیں کرتا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ ایسے بالکل ڈھکی چھپی ہو دکانیں تو پھر تو وہاں پر مجبوری ہوتی ہے. تو اب یہ جو لائٹس وغیرہ آن کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ان کا 1 گھنٹے کی پوری بچت ہوئی. تو لہٰذا اس بجلی کو بچانے کے لیے یہ ڈی ایس ٹی لگاتے تھے. پاکستان نے بھی لگانا شروع کی تھی لیکن پاکستان میں پھر بہت زیادہ مخالفت سامنے آئی تو لہٰذا انہوں نے لگانا بند کر دیا. اور ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کے سب سے زیادہ مخالف تھے, سب سے زیادہ ڈی ایس ٹی وہی استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرتے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. اور وہ تھا ہمارا کسان طبقہ, ذمہ دار طبقہ. اور وہ اس طرح سے کہ انہوں نے جو کہا سورج نکلنے پر کرنا ہے تو گرمیوں کے اندر یہ جلدی کر دیتے ہیں کیونکہ سورج جلدی نکل آتا ہے, اور سردیوں میں جا کر لیٹ کرتے ہیں ایک وجہ کہ سورج لیٹ نکلتا ہے. یعنی یہ ڈی ایس ٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. خیر چلیں, یہ تو ہوگی میرے اپنے الفاظ میں وضاحت ڈی ایس ٹی کی. ابھی یہاں سے پڑھ لیتے ہیں ڈی ایس ٹی کی وضاحت. حاصل کرتے ہیں یعنی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم. اس کے لیے وہ موسم گرما یعنی سمر سیزن میں بطور ڈی میں 1 گھنٹہ پلس کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں, 1 گھنٹے کا اضافہ کر لیتے ہیں. یعنی معیاری گھڑی کے اندر اگر معیاری گھڑی +5 تھی تو کر لیں گے, اور اگر معیاری گھڑی -6 تھی اب +1 کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا, تو اب -5 کریں گے. شمالی دنیا والے ممالک اکثر مارچ کے آخری اتوار سے اکتوبر کے آخری اتوار تک ڈی ایس ٹی لیتے ہیں, جبکہ جنوبی دنیا والے ممالک اکثر اکتوبر کے پہلے اتوار سے اپریل کے پہلے اتوار تک ڈی ایس ٹی لیتے ہیں. اس میں وجہ کیا ہے, کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جون کے اندر گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیاں صرف شمالی دنیا میں ہوتی ہیں, جنوبی دنیا کا معاملہ الٹا ہے, ان کی دسمبر میں گرمیاں ہوتی ہیں. لہٰذا اس لیے وہ ڈی ایس ٹی بھی جا کر تب لیتے ہیں جب شمالی دنیا والوں کی سردیاں ہوتی ہیں, تو کیونکہ ان کے پاس گرمیاں ان دنوں میں آتی ہیں. اب پیارے طلبہ کرام, آپ نے 2 گھڑیاں پڑھی تھیں, ایک بلدی گھڑی ایک معیاری. تو اب ان دونوں گھڑیوں کے مابین جو فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعدیل مروج. ٹھیک ہے, تعدیل مروج معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی کے درمیان فرق کو تعدیل مروج کہتے ہیں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈفرینس بٹوین لوکل اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائم. تعدیل مروج معیاری گھڑی سے بلدی گھڑی کو تفریق کرنے پر حاصل ہوتی ہے, یعنی آپ معیاری گھڑی مائنس بلدی گھڑی کر دیں. مثلا پاکستان کی معیاری گھڑی +5 ہے اور کراچی کی بلدی گھڑی 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے. یہ پورے 5 گھنٹے ہیں, یہ 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے. اب معیاری گھڑی کو بلدی گھڑی سے تفریق کیا تو جواب آیا 31 منٹ اور 44 سیکنڈ, 0 گھنٹہ آیا. یعنی اس میں گھنٹہ 0 ہے, 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ آیا جواب. لہٰذا کراچی کے تعدیل مروج 31 منٹ 44 سیکنڈ زائد ہے. ٹھیک ہے, 5 - 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ برابر جواب آیا 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ. اب آگئی تعریف آگے قطبین کی, بہت آسان ہے تعریف. خط استوا سے ہر جانب 90 درجے کی دوری پر ایک نقطہ جو شمال کی جانب ہے اسے قطب شمالی یعنی نارتھ پول کہتے ہیں, اور جو نقطہ جنوب کی طرف ہے اسے قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ خط استوا ہے, یہ اوپر قطب شمالی نیچے قطب جنوبی, یہ 90 درجے پلس میں اور یہ 90 درجے مائنس میں. یہ دیکھیے عرض بلد کے ساتھ یہاں پر مائنس لگا ہوا ہے کیونکہ یہ جنوب کا عرض بلد ہے. اب
तारीफात मुकम्मल हो रही हैं, तकरीबन 3 तारीफात रह गई हैं बस। दायरा निस्फ नहार, एक हमने और दायरा खींचना है आसमानों के अंदर। शिमालन जुनूबन बनने वाला वो दायरा, यानी वो दायरा शिमालन जुनूबन बनेगा, शिमाल से जुनूब की तरफ कह लें या जुनूब से शिमाल की तरफ कह लें, जो समतुल रास, समतुल कदम और कुतबैन को छूता हुआ गुजरे, उसे दायरा निस्फ नहार कहते हैं। ठीक है, शिमालन जुनूबन गुजरेगा, समतुल रास को भी टच करेगा, समतुल कदम को भी टच करेगा और कुतबैन को भी टच करेगा, यानी पूरा एक दायरा होगा, ये दायरा निस्फ नहार कहलाता है। ये देखिए ये शख्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये इसका, ये देखिए ये ब्लैक वाला ये दायरा निस्फ नहार है। ये देखिए यहाँ से गुजरा और ये समतुल रास को भी टच किया, शिमाल को की तरफ गया, यहाँ पर कुतुब शिमाली होगा, जाहिर है कि शिमाल की तरफ गया है, तो इसको भी टच किया, समतुल कदम को भी टच किया और इधर से आकर ये कुतुब जुनूबी को भी टच किया, तो ये दायरा निस्फ नहार कहलाया। आगे सेकंड लास्ट तारीफ है समते किबला, डायरेक्शन ऑफ किबला। समते किबला की तारीफ क्या है? क्योंकि हमें किबला तो नजर नहीं आ रहा, हम जो नमाज तो किस तरफ रुख करके पढ़ते हैं, समते किबला की तरफ रुख करके पढ़ते हैं, तो भी हमें किबला नजर तो नहीं आता, हमारे नजर तो आ रहा होता है उफुक, और हम रुख करते हैं उफुक को, और उफुक भी पूरा एक दायरा है ना हमारे इर्द गिर्द। अब एक दायरे में 360 दर्जे होते हैं, यूं समझिए। अब 360 दर्जों, एक एक दर्जे पर आप एक नुक्ता लगा लीजिए, आसान अल्फाज में समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो आप अब दायरा उफुक का वो नुक्ता जिसकी तरफ मुंह करने से किबले को भी मुंह हो जाए, वो समते किबला कहलाएगा। ये देखिए ये शख्स, इसने किबले को मुंह किया, लेकिन इस किबला इसको चूंकि नजर नहीं आ रहा था, और ये इसका उफुक है, ये लाइन जो बीच में लगी हुई है, तो इसने इस जगह को टच करती हुई वह इसका रुख गुजरा और जाकर समते किबला की जानिब इसका रुख हो गया, तो इसको कहेंगे समते किबला। आगे आती है हमारी आखिरी तारीफ। उससे पहले ये 2 तस्वीर हैं, लेकिन ये तस्वीर सफ़ा नंबर 75, सफ़ा नंबर 78, इन सफ़ात की तस्वीरें हैं, और वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अपने मकाम पर पढ़ेंगे। दोबारा हम इन तस्वीरों की तरफ आएंगे, सफ़ा नंबर 75, 78 जब आएंगे, सफ़ा नंबर 145, 147 सफ़ा नंबर जब आएगा, तो वहां पर निशानदेही की होगी कि जी इस सफ़े पर जाएं, सफ़ा नंबर 43 पर जाएं, और वहां पर आपको ये तस्वीर मिलेगी। हम दोबारा वापस आएंगे और ये तस्वीर तब आकर देखेंगे, तब आकर इसको समझेंगे। और ये हमारा यूं समते किबला का बाब मुकम्मल हो गया। और अब प्यारे तलबा किराम, आगे हमने पढ़ना क्या है? आज आपको निस्फ नार हकीकी सबक शुरू करवाया जाएगा, और सिर्फ एक चीज सिखाई जाएगी, निस्फ नार निकालने का तरीका एक सिखाया जाएगा, और उस तरीके से आप निस्फ नहार का वक्त निकालेंगे, यानी इब्तिदाए ज़ोहर का वक्त। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ोहर का वक्त उस वक्त से है जब सूरज ढल जाए और इंसान का साया उसके कद के बराबर हो जाए, और इसका इख्तिताम उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि असर का वक्त ना आ जाए। इस हदीस पाक के तहत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जवाल के साया बराबर होना बाज मुल्कों और बाज जमानों में होगा। सर्दी में चूंकि सूरज जुनूब की तरफ होता हुआ जाता है, लिहाजा इस वक्त बाज जगह यह साया उस चीज के बराबर हो जाता है, लेकिन कभी बाज मुल्कों में इस वक्त साया बिल्कुल भी नहीं होता, या होता है मगर बहुत थोड़ा। जिस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया होगा वो मौसम सर्दी का होगा, लिहाजा यह हदीस बिल्कुल जाहिर है और आइंदा हदीसों के खिलाफ नहीं जिनमें इस साया की मिकदार तस्मा के बराबर बयान फरमाया, यानी मिशकात शरीफ के अंदर इसको तस्मा के मिकदार के बराबर भी हदीस में फरमाया गया, क्योंकि उन हदीसों के अंदर मौसम का जिक्र है और यहाँ पर मौसम सर्दी का जिक्र है। और हो सकता है कि इस जुमला में जोहर का आखिरी वक्त मुराद हो और हदीस के माना यह हो कि आफताब ढलने से जोहर शुरू होती है और एक मिसल साया पर खत्म। इस सूरत में यह हदीस इमाम शाफी की दलील है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 मिसल पर जोहर का वक्त निकलता है, इनके यहाँ 1 मिसल पर, लेकिन उनकी ये दलील कमजोर है, यानी उनकी ये दलील नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें साया असली का तो जिक्र ही नहीं हुआ। अब वक्त के अंदर हम भी पढ़ेंगे कि साया असली क्या चीज होता है। इमाम शाफी के यहाँ साया असली के अलावा 1 मिसल साया चाहिए। अब इसके अंदर साया असली का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ उस
के बराबर हो जाए। निस्फ़ुन नहार हकीकी की वजाहत। सूरज जब तुलू होता है तो उफक से बुलंद होता चला जाता है, हत्ता के ताल यानी जो हमने दायरे निस्फ़ुन नहार पढ़ा था, ये दायरे निस्फ़ुन नहार से टकराता है, इसको खत्ते जवाल भी कहते हैं। अब सूरज को जवाल आ रहा होता है, सूरज जवाल कह लें या इब्तिदाई जोहर कह लें, यानी जवाल का जो टाइम है हकीकी तौर पर वो जोहर का टाइम है, तो इसको आता है तो अपनी इंतहाई बुलंदी यानी पीक पॉइंट पर पहुंचता है वक्त निस्फ़ुन नहार हकीकी है, क्योंकि ये निहार उर्फी या हकीकी यानी तुलूता गुरूब के वक्त को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, बिल्कुल बीच का टाइम। इससे मुत्तसिल लम्हा में सूरज ढल जाता है यानी नीचे आता है, लिहाजा ज़िमरन इसे जवाल या इब्तिदाई जोहर भी कहते हैं। यानी सूरज जब तुलू होता है तो ये बुलंदी की तरफ जा रहा होता है, इसको उरूज आ रहा होता है, हर वक्त ये उरूज की तरफ जा रहा है। और जब ये दायरे निस्फ़ुन नहार से टकराता है, अब क्या होता है, अब इसका उरूज बंद हो जाता है, अब इसको जवाल आना शुरू होता है और ये मगरिब तक फिर जवाल में ही रहता है, फिर इसको हर लम्हे जवाल ही आता रहता है। हमारी अवाम क्या कहती है कि वक्त जवाल वक्त मकरूह होता है, तो अवाम नाम लेने में गलती करती है, यानी जिस अवाम वक्त जवाल कह रही है वो हकीकत में वक्त जवाल नहीं है, वो वक्त ज़हरा कुबरा है, वो वक्त मकरूह है। हकीकत में जवाल वक्त ज़ुहर का नाम है, वक्त असर भी वक्त जवाल के अंदर ही आता है, क्योंकि इन दोनों औकात के अंदर सूरज को मुसलसल जवाल आ रहा होता है, सूरज मुसलसल नीचे जा रहा होता है। वक्त ज़ोहर जुमा, आफ्ताब यानी सूरज ढलने से इस वक्त तक है कि हर चीज का साया इलावा साया असली के दो चंद यानी दुगना हो जाए। फायदा, हर दिन का साया असली अब क्या होता है, वो साया है कि उस दिन आफ्ताब सूरज के खत्ते निस्फ़ुन नहार पर पहुंचने के वक्त होता है, यानी ऐन निस्फ़ुन पर जब पहुंचता है इब्तिदाई ज़ोहर के वक्त, जब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, उस वक्त जो साया होता है वो साया असली होता है। और वो मौसम और बिलाद यानी शहरों के मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ होता है। दिन जितना घटता है साया बढ़ता जाता है, दिन जितना छोटा होगा साया उतना ही बड़ा होगा, और दिन जितना बढ़ता है साया कम होता जाता है। यानी यानी सर्दियों में साया ज्यादा होता है, बड़े होते हैं साये, और गर्मियों में छोटे होते हैं। कुतुब फिक्र में नकल निस्फ़ुन नहार मालूम करने का आसान तरीका। निस्फ़ुन नहार उर्फी, तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से उसके गुरूब यानी सूर्य के डूबने के निस्फ को निस्फ़ुन नहार हकीकी कहते हैं, यानी तुलू और गुरूब के बिल्कुल बीच का टाइम जो होता है वो निस्फ़ुन नहार हकीकी होता है। अब इसको निकाला किस तरह से जाए, इसको मालूम कैसे किया जाए, तो उसके प्यारे तलबा इकराम तीन फार्मूले हैं। मैं तीनों फार्मूले इंशाअल्लाह आपको प्रैक्टिकली तौर पर भी समझाता हूँ हल शुदा तरीकों से, और इसको पढ़ते हैं हम, और इसी के लिए यही आपको आज मशक भी दी जाएगी और आपने उसका हल भी निकाल भी उसने दिया होगा, ग्रुप का वक्त भी दिया होगा, आपने निस्फ़ुन नहार हकीकी मालूम करना होगा। तुलू ता गुरूब की दरमियानी मुद्दत मालूम करके इसके निस्फ हिस्से को वक्त तुलू में जमा कर लें या वक्त गुरूब से कम कर लें। यानी आपने करना क्या है, इस फार्मूले के अंदर तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप, तुलू ता गुरूब की दरमियानी मुद्दत मालूम करें। अब जो दरमियानी मुद्दत निकलेगी उसका निस्फ करें, इसके निस्फ हिस्से को। अब उसको या तो वक्त तुलू में जमा कर लें या वक्त गुरूब से कम कर लें। लेकिन इस फार्मूले को हल करने के लिए प्यारे तलबे किराम आपकी घड़ी हमेशा 24 घंटे वाली होनी चाहिए, यानी दिन 12 के बाद 1 नहीं बजेगा, 13 बजेंगे, 14, 15, इसी तरह से गुरूब जो होगा वो शाम के 6 बजे नहीं होगा। अगर 6 बजे होगा तो उसको 18 कहा जाएगा, और अगर वो शाम के 6 लिखा हुआ हो तो उसके अंदर 12 आप प्लस कर लें। नोट, अगर औकात 24 घंटे वाली घड़ी से हो तो गुरूब से तुलू तफरीक करें, इस तरह दरमियानी मुद्दत आपको हासिल हो जाएगी, यानी पहला आपका स्टेप हल हो जाएगा। और अगर 12 घंटे वाली घड़ी हो तो पहले वक्त गुरूब में 12 जमा करें, फिर गुरूब से तुलू तफरीक कर दें, यानी वही काम करना है अपने पहले वाला। मसलन अगर वक्त तुलू 6:20 और गुरूब 6:50 पर हो, तो अब हमने तो वक्त गुरूब में 12 आपने क्या किए, प्लस किए, 12 जमा करने पर ये 6:50 की जगह 18:50 बना। अब गुरूब से तुलू तफरीक करने पर दरमियानी मुद्दत 12 घंटे 30 मिनट बनी, यानी 18:50 माइनस 6:20, तो 18 में से 6 गए बाकी बचे 12, 50 में से 20 गए बाकी बचे 30, 12 घंटे 30 मिनट बनी।
अब दूसरा स्टेप हल किया, इसके निस्फ से निस्फ किया तो वो बना 12 का आधा, हो बना 6 और 30 का आधा बना 15। इसके निस्फ 6 घंटे 15 मिनट को अब वक्त तुलू में जमा किया, वक्त तुलू के 6:20 में जमा किया तो 15 और 20 हो गए 35 और 6 और 6 हो गए 12, ठीक है। या वक्त गुरूब के 18:50 में से कम किया, यानी 6:15 को 18 में से 6 कम गए, यानी घंटों में से घंटे गए तो बाकी बचे 12, 50 में से 15 गए तो बाकी बचे 35, वही जवाब वही आएगा। पर 12:35 वक्त निस्फ नहार हासिल हुआ। अब प्यारे तलबा किराम, आपको इसका एक तस्वीरी शक्ल में भी समझाता हूं, आइए हम उसको हल करते हैं वहां से। ये देखिए प्यारे तलबा किराम, ये 6:20 और 6:50 है, इसके दरमियानी मुद्दत 12:30 आई। अब ये 12:30 किस तरह से आई, तो जाहिर है कि हमने उसको 24 घंटे वाला ले लिया था। 18:50 में से 6:20 हमने माइनस किए, अगर वैसे हम 6:50 से 6:20 माइनस करते तो सिर्फ 30 जवाब आता, हमने इसको 24 घंटे वाला लिया तो ये जवाब आया 12 घंटे 30 मिनट। अब हमने 12 घंटे 30 मिनट को 2 पर तकसीम कर दिया तो ये बन गया 6 घंटे 15 मिनट। अब हमने 6:20 जमा 6:15 किया 12:35, या फिर 18:50 से 6:15 माइनस किया तो जवाब आया 12:35। दो तरफ जवाब एक ही आया और यही जवाब हमारा किताब में भी लिखा हुआ है। फार्मूला नंबर 2, अब दूसरे फार्मूले के अंदर आपकी 12 घंटे वाली घड़ी भी चल जाएगी। तुलुआ ग्रुप के औकात का मजमुआ लेकर इसमें 12 घंटे का इजाफा करके इसको फिर 2 पर तकसीम करें। नोट, अगर औकात 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो तो 12 घंटे का इजाफा नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो औकात तो 2 स्टेप होंगे, 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो घड़ी होगी औकात होंगे तो आपके 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप, तुलुआ ग्रुप के औकात का मजमुआ, यानी तुलुआ और ग्रुप को आपस में जमा कर दें। अब इसमें 12 जमा कर दें अगर 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक औकात है। अब जो जवाब है उसको 2 पर तकसीम कर दें। मसलन अगर वक्त तुलू 6:20 और ग्रुप 6:50, वही मिसाल वही आएगी, इनका मजमुआ 13 घंटे 10 मिनट हुआ। अब ये कैसे बना वो इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिकल में सीखते हैं। इसमें 12 घंटे का इजाफा करने पर 25 घंटे 10 मिनट बना, इसको 2 पर तकसीम करने पर 12:35 वक्त निस्फ नहार हासिल हुआ। अब आइए हम इसको देखते हैं। ये देखिए, आपने सबसे पहले तुलू और गुरूब को आपस में जमा किया, 6:20 जमा 6:50 तो ये आ गया 20 और 50 जमा हो गए 70, 6 और 6 जमा हो गए आपस में 12 घंटे 70 मिनट। अब प्यारे तलबा किराम 70 मिनट तो होते नहीं है, यानी जब भी मिनट 59 से 60 मिनट पे जाएंगे फौरन वो घंटे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या किया कि इसको हमने ये 70 मिनट में से पूरा 1 घंटा उधर निकाल लिया, यानी 60 मिनट घंटों की तरफ ले गए तो 1 घंटा इधर आ गया। अब ये 12 घंटे के बजाय 13 घंटे बच गए और बाकी इधर 70 में से 10 मिनट बच गए। टाइम तो देख लें आप, मैं किस टाइम जा रहा हूँ, अभी तक आसिफ नहीं आया, ठीक है। अब प्यारे तलबा इकराम, पहला स्टेप हमारा हल हो गया और वो बना 13 घंटे और 10 मिनट। अब हमने अगला स्टेप हल करना है। तुलूता ग्रुप का औकात का मजमुआ लिया, अब इसमें 12 घंटे का इजाफा करना है। हमने क्या किया, 13 घंटे 10 मिनट जमा 12 घंटे पूरे, 10 जीरो में जमा हुआ तो आया 10 और 12 और 13 आपस में जमा हुए तो आ गए जवाब 25। तो ये 25 घंटे 10 मिनट फिर इस तरह से बने थे। अब 25 घंटे 10 मिनट को अब तीसरा स्टेप हल करना है, हमने 2 पर तकसीम करना है। तो ये 2 का टेबल गया 12 मरतबा। अगर आप डायरेक्ट 2 का टेबल ले जाएंगे 12 दूना 24 आ जाएगा, वरना एक एक करके ले जाएं। यानी सबसे पहले 2 पर हल किया, 2 एकम 2 और ये पूरा पूरा हल हो गया, 5 आया। 2 का टेबल 2 दफा गया तो 4 आया। अब ये नीचे 1 बच गया। अब प्यारे तलबा इकराम, फिलहाल हमने इसको इशारिया नहीं लगाना, बल्कि घंटों में अगर बच जाए तो उसको मिनटों की तरफ कन्वर्ट करें। यानी आपने क्या करना है, ये चूंकि 1 घंटा बचा है, ऊपर तो 12 आ गया, आप फौरन 2 नुक्ते दे दें और इसको मिनटों की तरफ कन्वर्ट कर दें। अब घंटे को मिनट बनाने के लिए उसको 60 से ज़रब दी जाती है, आपने इसको 60 से ज़रब दे दी तो ये 60 बना। ऊपर के 10 मिनट भी इसके अंदर मजीद प्लस हो जाएंगे
تو یہ ٹوٹل بن گئے اب 70 منٹ. اب 70 کو 2 پر تقسیم کریں گے. سب سے پہلے 7 کو ہم نے 2 پر لے کر گئے, تقسیم کیا تو 3 2 6 اور نیچے 1 بچ گیا, اوپر والی 0 بھی اس کے ساتھ اتاری. تو اب یہ 5 دونی 10 ہو گیا اور یہ 12:35 یہ وقت نصف النہار ہمیں حاصل ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں فارمولا نمبر 3 کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیے, اگر اوقات 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہوتے تو کیا ہوتا. یہ تو تھا, ہم نے طلوع جمع غروب کیا, پھر 12 گھنٹے پلس کیے, 6 20 جمع 18 50 بننے تھے, اور یہ پہلے ہی 24 17 ہو جانا تھا. اب اس کو ہم سیٹنگ کرتے, یہ 25 گھنٹے 10 منٹ بننا تھا, تو یہ 25 گھنٹے 10 منٹ یہیں پر بن گیا. تو لہٰذا یہ بیچ والا سٹیپ ہم نے صرف اس لیے حل کیا, 12 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق تھے. اگر 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہوتے تو یہ سیکنڈ سٹیپ حل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی تھی, بلکہ یہ ڈائریکٹ پہلا سٹیپ اور تیسرے سٹیپ سے ہی وقت ہمارا نکل آتا. اب آگے آتا ہے فارمولا نمبر 3. اگر اوقات 12 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہوں تو طلوع و غروب کے اوقات کا مجموعہ لے کر پہلا سٹیپ یہ کریں. دوسرا اب اس کو 2 پر تقسیم کریں, پھر اس میں 6 گھنٹے کا اضافہ کر لیں. مثلا اگر وقت طلوع 6:20 اور غروب 6:50 ہو, ان کا مجموعہ 13 گھنٹے 10 منٹ ہوا. یہ تو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے, سمجھ آ گئے کہ 13 گھنٹے 10 منٹ کیسے بنے. اب اس کو 2 پر تقسیم کریں تو 6 گھنٹے اور 35 منٹ حاصل ہوئے. اب اس میں 6 گھنٹے کا اضافہ کرنے پر 12:35 وقت نصف النہار حاصل ہوا. لیکن یہ کیسے حاصل ہوا, تو آئیے پیارے طلبہ کرام اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں, طلوع اور غروب کو آپس میں جمع کیا, یہ 13 گھنٹے 10 منٹ بنا. اب اس کو ہم نے 2 پر تقسیم کیا, تو وہی بات ہے جس طرح پہلے کیا تھا. تو 13 کو 2 پر کیا تو اس کا ٹیبل 6 تک گیا, 6 2 12, 1 نیچے بچ گیا. اس کو منٹوں کی طرف کنورٹ کیا تو یہ 60 منٹ, اوپر والے 10 منٹ ملا کر ٹوٹل 70 منٹ. اب اس کو 2 پر تقسیم کیا تو یہ اوپر آیا جواب 35. 6:35 میں ہم نے 6 گھنٹے کا اضافہ کیا تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا 12:35. لہذا یہ وقت نصف النہار ہوا. نوٹ, گھنٹہ منٹ سیکنڈ کی جمع تفریق ضرب و تقسیم وغیرہ میں ستینی نظام یعنی 60 والے نظام کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے, کیونکہ سیکنڈ منٹ کا اور منٹ گھنٹے کا 60واں حصہ ہوتا ہے. جس طرح ابھی گھنٹے میں بچا تھا اسے منٹوں کی طرف لے گئے تھے, اسی طرح سے اگر کبھی منٹوں میں بچے تو اس کو ہم سیکنڈوں کی طرف بھی اسی طرح سے لے جائیں گے. لیکن اگر سیکنڈوں میں بچے گا اس کو ہم مزید آگے نہیں لے کے جائیں گے, بلکہ اس کو اشاریہ کے ساتھ لگا دیں گے, وہ جس طرح ہم عمومی طور پر اشاریہ سے حل کرتے ہیں. حل اس طرح فرمائیں کہ اکائی والے ہندسے کو تو ایسے ہی لکھ دیں, یعنی اگر آپ کے پاس نیچے جواب جو آئے, جیسے پیچھے ہمارے پاس 70 جواب آ گیا تھا منٹوں میں, تو اگر آئے تو اکائی والے ہندسے کو تو ایسے ہی لکھ دیں جیسے عام طور پر لکھتے ہیں. یعنی 70 کے اندر اکائی والا ہندسہ کیا تھا, 0 تھا, 7 دہائی تھا, تو ہم نے 0 کو تو ویسے ہی لکھ دیا. اور دہائی کا ہندسہ جب کم از کم 6 یا اس سے زائد ہو جائے تو دہائی کو 6 پر تقسیم کریں. ٹھیک ہے, اب 7 آیا تھا, 7 کو ہم نے 6 پر تقسیم کریں گے تو اب 6 کا ٹیبل ایک دفعہ جائے گا اور پھر نیچے 1 بچ جائے گا. جو باقی بچ جائے آخر میں نیچے, اسے اب دہائی کی جگہ پر اس کو لکھیں. اب جو حاصل تقسیم یعنی جتنے تک اس کا ٹیبل گیا, پہاڑا گیا, اس کو اگلے مرتبے گھنٹے یا منٹ کی اکائی میں بڑھا لیں. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ وہ 6 کا ٹیبل بھی ایک ہی دفعہ گیا تھا, نیچے بھی ایک ہی بچا تھا. ذکر کردہ تینوں قواعد یہ کیلکولیٹر کے بغیر ڈائری پر حل فرمائیں. انشاءاللہ اس عمل سے ستینی نظام یعنی ڈگری سسٹم کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی. یہ جو آگے مزید فارمولہ ہے یہ ہم کل پڑھیں گے, یہ ہم نے آج نہیں پڑھنا. یہ کیلکولیٹر سے حل کرنے کا طریقہ ہے یہ, اور